السلام علیکم ناظرین، تھی وچان وائس آف کشمیر وچ تہد میزبان ظاہر جاوید پیش خبر۔ سینئر حریت لیڈر تو چیئرمین حریت کانفرنس محمد اشرف صحرائی سپد آز گورنمنٹ میڈیکل کالج جمع حرکت قلب بند گھنہ ست فوت۔ تہ ژیتس معمر حریت لیڈر محمد اشرف صحرائی پتمہ وری پہ پبلک سیفٹی ایکٹس تحت کوٹ بلوال جیلس مز مقید، یت تہذ حالت خراب گھنہ پتہ تم جمع کس میڈیکل کالجس مز علاج معالجہ باپت داخل کرنا آئی، تاہم سپد تم آز دلچ دھڑکن بند گھنہ پتہ فوت۔ یہندس فوت سپدنس پہ کہو سیاسی تو سماجی تنظیموں کیو لیڈرو دکھ بومت تو چھک تہندس خاندانس ست تعزیت بومت۔ کووڈ وبا دہ پتہ دہ ہرنس پیش نظر آز ہندو بڑو تاجرو انسانی بنیادن پہ اخ بوڑ فیصلہ نوان وونمت تم چلاون پنس لاگتس پہ کھانا تہ سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال یت تم ڈاکٹرن ہند تنخواہ کیو دوہن ہند خرچہ تہ پانے پورناون۔ تمو وونمت کووڈ-19 وبا کاری مز پزِ اسہ انتظامیہ اتھ روٹ کرن، تکیاز کووڈ وبا کاری کاپہ رٹن سٹھا دشوار یوتام نہ پرت زی شور شہری پنن اتواس دی۔ ہم نے یہ ایک چھوٹے لیول پہ ایک بزنس کمیونٹی نے ایک واٹس ایپ گروپ شروع کیا تھا جس میں کچھ فیملیز نے انیشیٹو لیا، اور ماشاءاللہ یہ ابھی کافی بڑا ہو گیا ہے، تھوڑا کافی لوگ اس میں انٹرسٹ ہے ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے۔ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے یہاں کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے بولا یہ مہم تھوڑا ہیلپ فل رہے گا۔ ہم نے کھانا پیکج سپلائی کیا جو کافی اچھا رہا، کافی رسپانس رہا۔ ہمیں لگا ہم اور کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں محنت اور۔ تو ابھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم کو ایک 40 یا 50 بیڈ کا ہاسپٹل ٹیک اوور کرنے کا پرپوزل ملا ہے، اور ماشاءاللہ ہم سارے بزنس فیملیز مل کے اس بارے میں ڈسکس کر کے اس کو شروع کریں گے، اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل، ایک چھوٹی سی مہم ہم اپنی جگہ شروع کریں گے۔ اس میں آکسیجن، بیڈز، فوڈ سپلائی اور جو بھی ہیلپ ہم سے ہو سکتی ہے ہم سب سے مل کے وہ ہم کریں گے۔ جو ہماری نیشنل کیپٹل دہلی کا حال ہوا ہے اس کو لے کے ہر اسٹیٹ پریکاشنری میجرز لیتے ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانس، اس لیے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پریپیئرڈ ہو فار دا ورسٹ۔ لاک ڈاؤن افیکٹ میں ہے پر انکنوینئنس لوگوں کو ہو رہی ہے، اس لیے ٹریفک موومنٹ کچھ حد تک چل رہی ہے۔ یہ بیماری آگے نہ پھیلے، ہم دلی والے مقام پہ نہ پہنچے، اس کو ابھی روکے اور تیاری کر کے رکھے کہ خدا نہ کرے ہمارے پہ وہ ٹائم آئے کہ ہمیں پھر آکسیجن کی قلت ہو، تو بس ہم تیاری کرنے کے لیے لگے ہیں۔ آپ کو کیا لگا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، اسپیشلی لاسٹ میں جانا چاہیں گے آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ابھی میجر نیڈ کیا ہے جس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے؟ وہ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں، بہت پریشر ہے ان پہ، کافی ڈسٹریس کالز آ رہی ہے، ڈسٹرکٹس کافی ہمارے غریب ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بے روزگاری ہے، تو میڈیسن، آکسیجن اور یہ سب چیزوں کی وہ ہمیں پریپریشن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار رہے فار دا ورسٹ۔ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں، بہت اچھے سے کر رہے ہیں، بٹ کبھی کوئی خدا نہ خواستہ دلی والی حالت ہو، صورتحال آگے آئے، اس کے لیے ہم پریکاشن لیں گے۔ یپچ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سری نگرن آز پنس اکس بیانس مز عوامس اپیل کرمز تم گندن پنس زوس تو کرن حکومت طرف جاری SOPزن پہ سختی سان عمل۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کرونا کرفیو جو ہے اس کے لیے جو یہاں کے ٹریڈرز باڈیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں، سب نے اس کے بارے میں سپورٹ کیا، اور خاص کر اہم چیز یہ ہے کہ جو SOPز ہیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی یہ بات اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سری نگر واسیوں سے کہ ماسک پہنیں، اور کہیں میڈیکل ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈبل ماسک فار ڈبل میوٹینٹ وائرس، اور اس کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ سینیٹیشن، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز ویکسینیشن۔ سرکار نے مختلف جو کیٹیگریز گروپس ہیں، 45 ایئر پلس والے، 18 to 45 کے لیے بھی ویکسینیشن رول آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو مختلف کیٹیگریز میں جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے نزدیکی سینٹر پر ویکسینیشن کریں، اور اس کے ساتھ ہماری موبائل ٹیمز بھی وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہاں پر سری نگر ڈسٹرکٹ میں سفیشینٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس تقریباً 1.5 کروڑ لیٹرز
ऑक्सीजन जो है सरप्लस है। और चाहे हमारा SMHS हॉस्पिटल हो, चाहे स्किम्स हो, JLNM हो, पिछले कुछ दिनों में हमने मुख्तलिफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ नए ऑक्सीजन प्लांट भी सेटअप किए हैं। अभी और नए ऑक्सीजन प्लांट विद इन डेज शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। देखो, एक तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है, एक वो सोर्स है, दूसरा है जो बल्क सिलेंडर्स में आता है। उसके लिए हमारे यहाँ 4 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स भी चल रहे हैं, वहाँ से भी ऑक्सीजन आ रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है एट द मोमेंट। नेवरदलेस हम पूरा सिचुएशन को समझ रहे हैं, इसको पूरा नज़र बनाए हुए हैं, तो आवाम को हर तरीके की जो फैसिलिटेशन है वो कर रहे हैं। कोविड वार रूम जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, और कोविड वार रूम में किसी को ऑक्सीजन बेड से लेकर अगर इवन फुल्ली पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव फैमिलीज हैं, उनको अगर खाने की भी दिक्कत आए, वहां तक हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे ही मैसेजेस पैनिक फैलाने के लिए फैला देते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया, और कल भी कॉल किया किसी ने कहा कि उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली बेड प्रोवाइड करें। हमने JLNM हॉस्पिटल में 2 बेड्स भी उनके लिए जब रखे, तो उनको बोला आ जाइए, वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। एक ही एग्जांपल मैं आपको दे दूं। दूसरी मिसाल ये है, किसी ने एकदम सोशल मीडिया पे कम से कम हर जगह फैला दिया SOS कि मुझे ICU चाहिए, ICU वेंटिलेटर चाहिए। तो जब मैंने खुद बात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डॉक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि पेशेंट जो ऑलरेडी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है और स्टेबल है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो, ऐसे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही ट्रीटमेंट लें। खुद ट्रीटमेंट ना डिस्कवर करें। पेशेंट अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है तो खुद ना डिसाइड करें कि इसको ICU में शिफ्ट करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, डेफिनेटली इसको शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो मुफ्त की एडवाइस, मैं ये कहूँगा मुफ्त की जो एडवाइस इस वक्त मिल रही है, हर कोई शख्स अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रहा है, उस मुफ्त की एडवाइस को फॉलो न करें। किसी क्वालिफाइड और जो कोई अथॉरिटी हो हेल्थ सिस्टम पर, उसी की बात ही माने आप। हर किसी का बताया हुआ इलाज जो है वो फॉलो न करें। देखिए, जहां तक SOPs के बारे में आपने पूछा है, तो मैं एक बात ये कहूंगा कि SOPs हर शख्स की जुबान पर है, सबने रटे हुए हैं। आप 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, हम इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, और वायरस कोई नया नहीं है, ये 1 साल हो चुका है इसको। मैं ये कहूंगा कि SOPs को फॉलो करना सजा न समझे, बल्कि इसको अपने जिंदगी का हिस्सा समझे, जिंदगी की हिफाजत का हिस्सा समझे। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये कोई ये नाखवांदा भी है, अंधा भी है और बहरा भी है। ये नहीं देखता कि कोई शख्स बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, अदना है, आला है। किसी पर भी जो भी SOPs नहीं फॉलो करेगा वो इसकी यलगार में, इसकी चपेट में आ सकता है। मैं तमाम श्रीनगर वालों से ये अपील करना चाहता हूं कि SOPs का फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल गैदरिंग ना, किसी तरीके की भी ज्यादा क्राउड ना इकट्ठा हो, हैंड सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, इन सभी चीजों पर ध्यान दें, तो तभी हम सब मिलकर ये सिर्फ पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ना, सिर्फ मत सोचें कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है, बल्कि सोसाइटी पूरी को मिलकर लड़ना है, और पूरी सोसाइटी के तावन से ही ये मुमकिन है। एक बार फिर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हर किसी से मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि SOPs, कल अगर हमारे 1300 प्लस केस है, उसमें ट्रैवलर जो है 10-12 है टोटल, तो ट्रैवलर का कोई ज्यादा इसमें नहीं है। ये एक ऐसे र्यूमर फैलाई जा रही है या इसी बात को हवा देने वाली बात है। ऐसा ट्रैवलर का कोई पॉजिटिविटी, इनबॉर्न पॉजिटिविटी, लोकल यहाँ पॉपुलेशन के अंदर पॉजिटिविटी, जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पूरा एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी वक्तन फक्तन, जो SCC है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जो डिसीजन हैं, मुख्तलिफ जो डायरेक्शन हैं वो इशू की हैं, उनको भी पूरा फील्ड पर उतारा जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां तक कोरोना कर्फ्यू का ताल्लुक है, जो सवाल आपने पूछा है, मैं ये बताता चलूं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू है।
जो नेबरिंग कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ नहीं है, हो सकता है ट्रैफिक वहाँ से इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हो, उस पर भी पुलिस पूरे तरीके से चेकिंग करती है, कोई अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। खासकर मैं आपको बताऊं, कल खुद मैं और एसएसपी साहब खुद हम रोड पर थे, हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसीज वाले लोग बहुत सारे हैं, तो हम उनको अंदर मेडिकल इमरजेंसी में अगर कोई शख्स है हम डिनाई नहीं कर सकते। और रोड पर हमने कल देखा कि जब हमें लगा गाड़ियों का नंबर ज्यादा है तो हमने चेक किया कि गाड़ी रोक कर हमने चेक किया तो 90% केसेस मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं। आप क्या कोरोना कर्फ्यू में ये चाहेंगे कि किसी को अगर हेल्थ इमरजेंसी है उसको हम डिनाई करें? हम डिनाई नहीं कर सकते। कुछ ट्रैफिक तो रहेगा जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जिनको लोग हैं, वो तो वैसा ट्रैफिक तो रोड पर परमिसिबल भी है और वो रहेगा। आज कर DC कोलगामिस सिंदिस दपिस पे म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन मुनीब अहमद जरगर सन्ज सरबराही मज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सहित वाबस्ते कारकुनो जिलस मज सैनिटेशन ड्राइव। अथ मौकस पे आव बाजरन तो कस्बन मज दुकानन तो सड़कन सैनिटाइजर छकन तो सती आय लुकन कोविड-19 वबा निश बचने बापत एहतियाती तदबीरन हन जान दिन। मुनीब साहब, उनकी हिदायत पर हमने आज मार्केट जो है कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर चावलगाम तक, इस पर हमने फ्यूमिगेशन शुरू की है। हमने ये सोच के किया है कि जो ये वायरस आजकल बहुत तेज़ी से फैलने की कोशिश कर रहा है और हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं कि इस वायरस को फैलने न दें, अमल करें तो और इस वबा को फैलने से रोकने में हमारी मदद करें, ताकि हम अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि इस मुबारक महीने की वसातत से हमें इस वबा से नजात दे दे। आज कोर भारतीय जनता पार्टी सहित वाबस्त कारकुनो श्रीनगर पार्टी दफ्तरस पे मगरबी बंगालस मज हाल चुनाव हारने पत पेश आमतन वाखन पे एहतजाज। तह चतस मगरबी बंगालस मज आव हाल असम्बली चुनाव करना यथ मज ममता बनर्जी सज सरपरस्त वाजन पार्टी तृणमूल कांग्रेसन बार अक्सरियत सान चुनाव जून, यम पत कईहन BJP कारकुनन हंदन गरन पे हमल तो तोड़ फोड़ करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी हो, उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम नेशनल लेवल पे किया, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन के बाद डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन के बाद जो एक तांडव वहां मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने शुरू कर दिया है, जहां अब तक 16 से ज़्यादा BJP वर्करों का कत्लेआम किया, उनके घर फूंके जा रहे हैं, वहां औरतों के साथ रैप किया जा रहा है और बीजेपी के 3 ऑफिस जला गए। हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं, कड़ी अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और ममता बनर्जी से ये कहना चाहते हैं कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। देश का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के साथ है और बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। ममता जी, आपको 77 सीटों से इसकी फ्रस्ट्रेशन हुई है। आने वाला वक्त देखिए जब भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल में पूरे सत्ता में आके आपको इन चीज़ों का जवाब देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का वर्कर, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा है, ये ममता शासन पर एक काला धब्बा है। उसने गुंडे छोड़ के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसलिए आज श्रीनगर से हम इस बात का एहतजाज कर रहे हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि श्रीनगर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बंगाल के कार्यकर्ता के साथ है। जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपूर डॉक्टर ओवैस अहमदन हिच आज तजारती अंजुमनस सहित वाबस्त जिम्मेदारन सहित अकिस मीटिंग मज जिलस मज कोविड-19 सूरत हाल साम। मीटिंग मज दित तिमो ताजर बरादरी सहित वाबस्त जिम्मेदारन पे जोर जे तिम दियन जिलस मज कोविड-19 वबा कापे रटने बापत जिला इंतजामिया पन भरपूर अतवास। आप जानते हैं कि बांडीपुरा में ये कोरोना कर्फ्यू एक लगाया गया है, जिसमें जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं और जो बाकी दुकानें हैं, बाज़ार है, मार्केट है, उनको क्लोज रखा गया है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, चेन ब्रेक करने के लिए जो कोरोना वायरस की स्प्रेड की है उसके लिए। और आज मैंने और SSP साहब ने हमने दौरा किया जो हमारे मार्केट एरियाज़ हैं, एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, अभी हम रूरल एरियाज़ में भी जाएंगे और साथ ही साथ में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और अभी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है उनको भी देखेंगे। तो सारी जगह सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम बात करें अगर कोरोना कर्फ्यू की तो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की बहुत अच्छी कोऑपरेशन है। लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हमें सेफ रहना है तो घर पे रहना है,
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनका जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनका थॉरली चेकअप होता है। मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर कोई पॉजिटिव डिटेक्ट होता भी है तो हमारा प्रोटोकॉल है कि वो पहले अपना चेकअप कराए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाए, तो वो उसमें भी हमारा कोऑपरेशन करें। जबकि और बाकी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो या बेड्स की बात हो या ऑक्सीजन बेड्स की बात हो, तो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सामने आई है और हमें उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह से जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम वो फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी। हुकूमत तरफ आयद बंदिशों बावजूद सड़कन पे ट्रैफिक चलनस छन गसान। पेश सनिस नुमाइंद रईस वनी सुन यह रिपोर्ट। ये अकि तरफ लुकन कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाने बापत बांद बांद कर तत जमीनी सुथरस पे वुचन कहियन हेल्थ सेंटरन पे वन कोविड मुखालिफ वैक्सीन दस्तियाब। पेश रिपोर्ट। नहीं है इनके पास वैक्सीन, बोल रहे आएगा आएगा आएगा। अब ये समझ में नहीं आता ये क्या बात है गवर्नमेंट की, ये क्या बोल रहे हैं ऐसे। कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 4 दिन से आ रहा हूँ। ये बताइए हाजी साहब, अगर देखा जाए गवर्नमेंट के बुलंदबान दावे हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबिलिटी है, लेकिन वही अगर देखा जाए ये मेन जवाहर नगर है, यहाँ पर क्या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी? जी नहीं है अवेलेबल। मैं 4 दिन से वापस जा रहा हूँ। अंदाज़ा लगाओ ना, वहीं पर अगर होता तो मेरा हो जाता ना। पहला डोज भी नहीं हुआ, अगर होता इनके पास वैक्सीन तो हमको कर लेते। 4 दिन क्यों आता मैं यहाँ? और ये सब झूठे कर दावे हैं, ये सब झूठे दावे। गवर्नमेंट जो है जो झूठे दावे करते हैं। हमें 5 दिन हो गया यहाँ। मैंने ऑनलाइन इकराजपुरा जवाहर नगर, हाँ 5 दिन से मैंने ऑनलाइन कार्ड किया। इन्होंने बोला ऑनलाइन करो, लेकिन वो किया तो 5 दिन से भी हर दिन आते हैं यहाँ हमें वैक्सीन करो, बोलते हैं वैक्सीन ही कल आ जाओ, सुबह आते हैं दूसरा दिन आ जाओ। जब तक आज तक नहीं, अभी आप मैसेज पहुँची, इन्होंने ऐलान किया कि वैक्सीन पहुँच गया, लेकिन हम यहाँ आए तो हमने कार्ड चार्ट भर दिया, तो अभी बोल रहे हैं अभी नहीं पहुँचा। ये गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं ये गलत सब है, जब झूठ बात है। लोगों को परेशान करें, अगर वैक्सीन नहीं इनके पास क्यों हमें धोखे देते, क्यों लोगों को तंग करते हैं? ये मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर वैक्सीन है आपको देना है वो कर लो, दे दो हमें, दे दो, हमें तंग मत करो, क्यों परेशान कर रहे हैं? हम आप दवा कर रहे हैं, हम जो वैक्सीन देंगे, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कहाँ है? कोविड है इसमें कहाँ लगी है? ये कोविड का मसला है, इतनी भीड़ लगी है, ये कौन सा डिसिप्लिन हमें यहाँ रहा है? क्योंकि हर दिन आना पड़ता है, सबको मजबूर है, क्या करेंगे? वो ऐलान मैंने भी सुना, वो भी फेसबुक में मुझे इन्होंने भेज दिया था, मैंने भी देखा उसमें, लेकिन ये झूठ है। कहाँ पहुँच गया? यहाँ तो वैक्सीन है ही नहीं। ये मुल्कस मज दोहदुश लछवाद नफर कोविड-19 वबहस मज हेन तत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी मज कोविड-19 मुस्बत केसन मज दुह पत दुह हुरियर सपदान, युस तशवीश कथ। सरकारी मीडिया बुलेटिन मुताबिक आय पतमेन 24 घंटन मज यूटी मज 2740 नव कोविड मुस्बत केस, ये जन अत दौरान 52 नफरों अमे वबा सत पन्ने जिंदगी निश अथ छल। तो नाजरीन अथ सत वोत खबरन हुंद बुलेटिन अंत। तुम रोजो वुछान पन आवाज द वॉइस ऑफ कश्मीर।